So here in this module, we have sutras from first chapter. The numbers are 23 to 34. एक बार पढ़ लेते हैं. नंबर 23, ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः दुख दौर्मनस्यांगमेय जयत्वा श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य. So nice tongue twisters we have here. Begins with ईश्वर प्रणिधानाद्वा. और इसका मतलब है और ईश्वर प्रणिधान से भी. तो इसकी पूर्व भूमिका जो है, द प्रिलूड टू दिस सूत्र नंबर 23 is obviously the talk is going on about samadhi, nirbija samadhi and sabija samadhi. So Patanjali is saying that the highest levels of samadhi, as we spoke, that the highest level of sabij is asmitanugata. There are 4 stages. The first is called vitarkanugata, second is vicharanugata, third is anandanugata, and the fourth and final is asmitanugata, and then it is nirbija samadhi. So the highest levels of samadhi, which is asmitanugata and nirbija, they can also be achieved by Ishwar Pranidhana. That is what Patanjali is saying here. And this is a direct referral to Bhakti Yoga. This is a direct referral to Bhakti Yoga. Okay. In Yoga Darshan, Patanjali has beautifully woven together the precepts of all the 3 yogas, that is Karma Yoga, Bhakti Yoga and Jnana Yoga together. Because in the end, when you reach the higher realms, there is no differentiation there. The differentiation
as to these three paths of karma, bhakti, and jnana is only at the early stages, wherein a guru used to see certain tendencies in his pupil and advise a particular path for the pupil. If the pupil was overactive, like something like an ADHD fellow, you know, hyperactivity क्या हो, attention deficit, then perhaps the guru would think that नहीं ये तो ये बैठ ही नहीं सकता, तो इसको चलो कर्म योग में डालो, अच्छे कर्म करने के पीछे उसकी टेंडेंसी है, कुछ तो भी हलचल है, रजस बहुत एक्टिव है उसमें, रजस, तो रजस को दिशा देते हैं, चलो। फिर दूसरा एक हाथ कोई प्यूपिल होगा कि जिसको कृष्णा की मूर्ति सामने आ गई या राम की मूर्ति सामने आई या कोई भगवान की बात नहीं थी, तो उसके आंख से पानी बहने लगता है, इतना एकदम भावुक हो जाता है। ऐसा कोई प्यूपिल हो तो फिर गुरु सोचता था कि अरे हाँ, इसको भक्ति योग मार्ग पर डालो, ये बड़ा जल्दी प्रगति करेगा, अच्छा प्रगति करेगा। और फिर तीसरा कोई होगा बहुत ज्यादा सोचने वाला, बहुत उसको बहुत लॉजिक चाहिए, तर्क चाहिए, वितर्क चाहिए, फिर ये ऐसा क्यों, मैं नहीं मानता, प्रूफ क्या है, बड़ा आईक्यू वगैरह एकदम हाई है, तो फिर गुरु सोचता हाँ इसको इसको चलो इसको ज्ञान मार्ग में डालो, पढ़ने दो इसको, और सब दर्शन पढ़ने दो, छह दर्शन पढ़ने दो, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य। So that was the method adopted by the teachers, depending on what tendencies you have. So here Patanjali is directly addressing now the Bhakti Yoga in a very unique way, a very, very unique way. You will not find this kind of approach anywhere in the world. So he says that yes, these highest stages of being human, Purushartha, can be achieved also by Ishwar Pranidhana. Now, he has to explain to us what is Ishwar and what is this Pranidhana. So he starts explaining that to us now. So first he is describing Ishwar to us. So he says that Ishwar is a Purusha Vishesha who is forever untouched by your klesha, karma, vipaka, ashaya. See, he is describing Ishwar in a very peculiar way, unique way. Nobody in this world, no religion, nobody, no philosopher, no theologist has described God in this peculiar way. He is saying, Patanjali is saying that he is a special Purush. He is a very special Purush. Now, who is Purush? For you, who is Purush? The one who is residing in this Pur. This is Pur. There is this Sunita Pur. There is Manas Pur there. There is Mukti Pur there. There is Suhas Pur there. Aruna Pur there. And in that Pur, in Manas Pur, there is an entity. There is Chetana. A Chetana is residing. I'm talking about Chetana. I'm not talking about Mukti as a gender. I'm not talking about Mukti as in God. I'm talking about that Chetana inside of that Pur called Mukti. I'm talking about Chetana inside that Pur called Manas. That Chetana inside the Pur called Suhas.
That Chetana I'm talking about. That Chetana is called Purush in yoga terminology. The one who resides, the one who dwells, जो इस पूर्व में शयन करता है, विचरण करता है, रहता है, उसे पुरुष कहते हैं। ठीक है। अब पतंजलि कह रहे हैं कि वो जो ईश्वर है वो पुरुष विशेष है। मतलब तुम्हारा जो, तुम जो पुरुष हो, तुम्हारा जो पुरुष तत्व है, उस तत्व से विशेष है, मतलब उससे विलक्षण है। इतना समझो। आगे जाके इसका भी हम लोग ब्रेकअप करेंगे, समझेंगे ठीक से, लेकिन अभी के लिए उस सूत्र के शब्द के अर्थों के तरफ ख्याल करो कि पतंजलि कह रहे हैं कि वो पुरुष जो है, वो तत्व जो है वो पुरुष है, लेकिन विलक्षण पुरुष है, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं। वो विलक्षण पुरुष है और अपरामृष्ट। अपरामृष्ट मतलब कभी भी, जिसका न भूतो न भविष्यति न वर्त में तुम्हारे क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे उसका संबंध आया नहीं है, आएगा नहीं, कभी नहीं। अब ये तो बड़ी अजीब सी डेफिनेशन हो गई ना। ऐसा कोई डिफाइन करता है क्या ईश्वर को? तो क्यों किया पतंजलि ने ऐसा डिफाइन? तो पहले ये समझ लो कि तुम्हारे क्लेश क्या है। तुम्हारे क्लेश क्या है? व्हाट आर योर क्लेशास? दोज बिलीव्स we were talking about some time back, we were talking about irrational beliefs, right? तुम्हारी धारणाएं, कोर बिलीफ सिस्टम, एक्सक्यूज मी, वही तुम्हारे क्लेश है। वो पांच है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। We are going to look at them in the fourth module, no? This क्लेशास। लेकिन अभी के लिए इतना समझो, वो क्लेश is your belief system embedded in your buddhi, which gives rise to all your thoughts. 24/7, 60,000 thoughts pass through your mind, supposedly during waking hours. Now, from where do these thoughts come? They do not come out of thin air. They come out of your belief systems. Because your belief system is alive, it is throbbing, because your chitta is throbbing. स्पंदन हो रहा है तुम्हारे चित्त में, क्योंकि प्राण है तुम में, अंदर में। तो ये तो होना ही है। So they are your kleshas. So kleshas give rise to your thoughts, which we saw give rise to your emotions, which we saw give rise to action. The very word emotion has got motion in it. Emotions prompt you to act. And then you do karma with some emotion behind it. And that karma, so klesha results in karma in that, because there is a cascading order there. And karma, as soon as it is performed, its fruit is attached to you. And when it ripens, you'll have to eat it, that fruit. That is the vipak. Vipak is the fruition of the karma. And till the time it is not getting fruition, coming to fruition, it is held in your karmashaya, the reservoir. So in that reservoir, there are infinite fruits hanging there, waiting to be ripened so that you can eat them. The moment they ripen, you will have to eat them. You can't say, मेरा पेट भर गया है, अभी नहीं खाना. That doesn't work. बदहजमी हो जाएगी, खाना पड़ेगा, क्योंकि पक गया है, तुमने लगाया है.
खाने के इंटेंशन से ही लगाया है, खाना तो पड़ेगा, समझे? बट दैट इज अगेन येट अनदर चैप्टर इन द योग सूत्र, वेरी इंटरेस्टिंग, कर्म का सिद्धांत। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईश्वर। सो क्लेश है तुम में। कहाँ पे है क्लेश? तुम्हारे बुद्धि में। क्लेश है तुम्हारे बुद्धि में एम्बेडेड। Those क्लेश give rise to your thoughts, your emotions, your actions, your karma, which fructify. There is vipak, and those which do not fructify, whose time has yet not come, are stored in your karmashay. आशय मीन्स रिजर्वायर, जलाशय। जलाशय कहते हैं ना पानी का रिजर्वायर। तो कर्माशय मीन्स कर्म का रिजर्वायर। हाँ, तो ये सब तुम्हारा है ना, जमघट सब। तो इस सब से उसका जरा भी लेना देना नहीं है, उस ईश्वर तत्व का उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इस पर से एक बात सोचो थोड़ा आगे जाने के पहले, कि दिस पतंजलि सेइंग कि दिस फेलो इज एब्सोल्युटली, दिस ईश्वर फेलो इज एब्सोल्युटली unconnected with your क्लेश कर्म विपाक आशय। इट इज ऑल यू आर डूइंग। हाँ, तो फिर तुम जाके क्या मांगते हो मंदिर में उसको, कि भगवान मेरे को माफ कर दे, मेरे को ये कर दे ना, मेरे को वो कर दे। इट इज हाउ पॉइंटलेस इट इज। डू यू अंडरस्टैंड हाउ पॉइंटलेस इट इज फॉर यू टू गो टू टेम्पल्स? वो भगवान को पानी में रखते क्या वो, और तो ये हो जाने दे, मैं तेरे को 100 नारियल चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो। अरे ही इज नॉट कंसर्न विद इट मैन। इट्स ऑल द गेम ऑफ योर माइंड। हाँ, तुम्हारे वो जो श्रद्धा जो है, तुम्हारी श्रद्धा वर्क्स वंडर्स, फेथ वर्क्स वंडर्स, योर फेथ वर्क्स। ईश्वर हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट, अंडरस्टैंड दिस। बट फेथ कैन वर्क मैजिक। Faith will materialize things out of thin air. Faith has that power. Because you see, na, it's a matter of daily experience, but you don't look at it. There are so many things around you at which you don't look because you don't have those eyes. You conceptualize something in your mind and then it becomes a reality, right? Has it not happened in your life? Has it not happened? But you have never looked at it. So your concept, so your mind has that power to perceptualize what it conceptualizes, to bring it in the realm of perception. And if your mind conjures up an image of Krishna or Sai Baba, and your faith is total, that conceptualization will come in perceptualization, और सिर्फ उसी आदमी को साईं बाबा का दर्शन हो जाएगा, उसी को होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा। बाकी लोग बोलेंगे अरे इसको तो हेलुसिनेट हो रहा है ये, लेकिन उसके लिए वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा क्योंकि उसके माइंड का बिलीफ इतना स्ट्रांग है, और विदाउट डाउट है, निसंशय है कि वो उसे परसेप्चुलाइज कर सकता है, उसका माइंड, तुम्हारा नहीं। सो माइंड हैज दैट पावर। Whatever kleshas you have, whatever is then, that is why whatever deeply you hold in your mind, your thoughts are born out of that. Your emotions are conjured because of those thoughts. Your actions happen due to those emotions. The fruits are there for you to eat as soon as they mature or fructify. ये सब प्रकृति के realm में हो रहा है, इसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। ये तत्व जो है ये ईश्वर है। ये पतंजलि कह रहे हैं
लेकिन इससे भी ये सवाल सॉल्व नहीं होता कि फिर ऐसा क्यों बता रहा है पतंजलि, ये क्या तरीका है कि भाई तेरा कोई संबंध नहीं है उससे, मतलब उसका कोई संबंध नहीं तेरा, जो से लफड़ा चल रहा है ना तेरा, ये क्लेश और कर्म और विपाक और ये रोना धोना हंसना नाचना, ये जो तेरा जितना भी लफड़ा चल रहा है, उससे ईश्वर बोले नहीं, इसलिए बता रहे हैं हमें, वो ये बता रहे हैं कि वो तेरे ही अंदर है। अरे भाई, तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम एक घर में रहते हो, वो घर में जो भी होता है उसका असर तुम पे नहीं होता क्या? हाँ, घर में अगर खुशी का माहौल हो गया तो उसका असर तुम पे, तुम उसी घर में अंदर रह रहे हो, उसी घर के सदस्य हो, तो घर में जो भी होगा उसका असर तुम पे नहीं होगा। खुशी का माहौल होगा, खुशी होगी। अगर कोई मर गया, घर में दुख का माहौल है, मातम मना रहे, तुम पे असर नहीं होगा? 100% होगा तुम पे असर, लेकिन उस पे नहीं होगा, वो अंदर ही है तुम्हारे। तुम्हारे चित्त में खुशी हुए, तुम्हारे चित्त में गम हुए, तुम नाचो कूदो गाओ, उस पे असर नहीं होने वाला कुछ भी, वो न्यूट्रल ही है, वो सिर्फ साक्षी है, वो पुरुष विशेष है, वो है ईश्वर है। तुम नाचोगे गाओगे रोओगे हंसोगे सोओगे, जागोगे सपान देखोगे, सब कुछ करोगे, दुनिया में जाओगे उलझोगे, जो कुछ भी तुम्हारा चल रहा है वो तुम्हारे ही घर में रह रहा है, घर का सदस्य है। लेकिन वो अपरामृष्ट अपरामृष्ट है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो यू कैनॉट ड्रॉ हिम इन योर गेम, यू कैनॉट, यू जस्ट कैनॉट। वो तत्व ही ऐसा है कि तुम उसको, क्योंकि बाकी तो दुनिया को तुम अपने गेम में खींच लोगे, और घर में वही करते हो ना, इमोशनल ब्लैकमेल में वी आर एक्सपर्ट्स इन इमोशनल ब्लैकमेल, है ना? वो गेम में नहीं आ रहा क्या, चलो लेट्स प्ले द विक्टिम कार्ड। ओ, गेम में नहीं आ रहा, लेट्स प्ले द एग्रेशन कार्ड। ओ, लेट्स प्ले द सबमिशन कार्ड, aggression. Or let's play the withdrawal card. Withdraw. You will play all your cards to draw that person in the game. Your family member. ऐसा कैसा मेरे गेम में नहीं आ रहा है? हाँ, मैं इतना पेन में हूं, हाँ, तो तुम गेम में नहीं आ रहे मेरे, मैं इतना पेन में हूं, आई एम सफरिंग। You will see to it that you will pull that man, that woman, or whosoever it is. But you can't pull Ishwar. You can't. तो पतंजलि ने ये सूत्र इसलिए लिखा है कि भैया, दो चीजें, एक तो तू जो ईश्वर ईश्वर करके दुनिया भर में ढूंढ रहा है ना, इधर जा उधर जा, ये गुरु के पास जा वो गुरु के पास, ये कल्ट फॉलो कर, फिर वो कल्ट फॉलो कर, वो सब बंद कर वो सब, क्योंकि वो तेरे अंदर बैठा है। तो ये जो वण वण भटकना है ना, ये सगळं थांबवा। तो इसलिए योगी को कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि योगी का मंदिर, उसका शरीर उसका मंदिर है। तो ये पहली चीज पतंजलि बता रहे हैं, तेरा ईश्वर तेरे अंदर है। और दूसरी चीज ये है, बता रहे हैं कि अब तेरे अंदर है, ये तो कंफर्म हो गया ना, अब लफड़ा मत कर उसके साथ, क्योंकि वो नहीं सुनने वाला तेरी। तो तू उसको भी, तू इतना बदमाश है कि तू उसको भी ड्रॉ करेगा अपने गेम में, ईश्वर को, वो तेरे गेम में नहीं आने वाला। इट्स अ न्यूट्रल थिंग, इट्स अ न्यूट्रल पावर। तू उसके जैसा बनना, तेरे ही अंदर है, एग्जाम्पल फॉलो करने लायक तेरे ही अंदर है। बहुत सुंदर ऋचा है मुंडक उपनिषद में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य अनश्नन्यो अभिचाकशीति। ये पहला श्लोक है। और फिर दूसरा है, समाने वृक्षो पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः, दृष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशमस्य मह्यमानम इति वीत शोक।
ब्यूटिफुल, पोएटिक। पहले श्लोक का अर्थ है कि ये जो चित्त वृक्ष है मतलब तुम, इसके ऊपर दो पंछी बैठे हैं, सयुजा सखाया, सुनहरा पंख वाले सखा दोनों। उनमें का एक पंछी उछल कूद रहा है, इतना उछल कूद रहा है, नॉन स्टॉप, चू 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 चालू है उसका, ट्वीटी ट्यू कर रहा है। ये ब्रांच से वो ब्रांच, यहाँ से उधर, ऊपर से नीचे, उड़ता है वापस आता है, नॉन स्टॉप चल रहा है। ये फल खाता है, ये फल खाएगा, वो फल खाएगा, मीठा है, खुश होगा, खट्टा है, कड़वा है, रोएगा, थू करेगा, नॉन स्टॉप। यू सी ना बर्ड, बर्ड रुकता नहीं वो पंछी, है ना? वैसा एक का कंटिन्यूअस चल, और दूसरा शांत बैठा है, देख रहा है, इसको देख रहा है। That's it। पहला श्लोक बस इतना ही बता रहा है कि एक पंछी फड़फड़ 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 चालू है नॉन स्टॉप, और दूसरा शांत उसे देख रहा है। और फिर दूसरा श्लोक आगे वो ऋषि कहता है कि समाने वृक्षो पुरुषो नो निशया शोचति मन्यमान् जुष्टम यदा पश्यति। और वो जो फड़फड़ करने वाला जो पंछी है ना, फड़फड़ करते करते ना उसका एकदम ऐसा ऐसा ख्याल जाता है, चिमकता है उसको एक दूसरा बर्ड। अरे ये कौन है, ये तो मेरे जैसा ही दिख रहा है यार, कौन है ये? उससे बैठा है उधर, और फिर से उसका फड़फड़ फड़फड़ चालू हो जाती है। फिर थोड़ी देर उसको याद आता है कि यार जब भी वो उधर देखा था, ऊपर में एक बैठा हुआ है, शांति से मेरे से लग रहा था मुझे देख रहा है, वो कौन है? फिर से देखता है उसको, वहीं बैठा है वो, अभी भी शांति से इसको ऑब्जर्व कर रहा है ऐसे। तो ये मन में सोच, एक पागल है क्या, ऐसा कोई ये रहता है? पागल होगा तो छोड़ो उसको। फिर से अपना पड़ 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 इसका चालू। लेकिन अभी वो अट्रैक्ट तो हो गया है वहां पे, क्योंकि उसको कुछ तो भी अलग दिखा कि यार वो बड़ा सीरीन लग रहा था यार, उसको देखा तो बड़ा शांत लगा मेरे को भी, एक क्षण के लिए एकदम ऐसा काम डाउन जैसा लगा मेरे को। फिर से देखता है उसको, एंड देन एट वन पॉइंट ही गेट्स कैप्टिवेटेड बाय द अदर बर्ड, एंड ही गेट्स सो कैप्टिवेटेड कि वो फिर नजर ही नहीं हटा सकता उससे। ईशमस्य महिमान वीत शोक। और फिर उसको रियलाइज होता है कि यार अब मैं इसके साथ जब जुड़ के जाता हूँ इसके साथ, तो मेरा पूरा जो सफरिंग है वही गायब हो जाता है। यह एहसास होता है, उसको रियलाइजेशन होता है। सतदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, दैट इज मुंडक उपनिषद। तो पतंजलि कह रहे हैं, यू नो व्हाट, एक बार मुझे गुरुजी ने बताया था ये बात, बड़े गुरुजी पीके सैयंगा। पीके सैयंगा ने एक बार मेरे को ऐसा बुलाया, हे कम हियर, यू टॉक इन इंग्लिश। तो मैं डरते डरते ही गया। उसके पहले मैंने एक टॉक दिया था इंस्टीट्यूट में योग सूत्रों के ऊपर, उन्होंने सुना था वो, और मेरे को बोले यू आर स्टडिंग द योग सूत्र। हाँ हाँ जी, आई एम स्टडिंग द योग सूत्र। तो फिर मेरे को उन्होंने पूछा कि डू यू नो अबाउट द टू बर्ड्स। तो मेरे को तो मालूम था, तो मैंने तो बड़ बोल दिया, उनको तो बड़े खुश हो गए। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो फिर मेरे को बोले कि यू नो इट इज माई बिलीफ दैट व्हेन पतंजलि रोड द योग सूत्र he had Mundak in mind. So study Mundak. This came directly from B.K. Iyengar. Believe me, that was my starting point of studying the Upanishads seriously. Till then तो मैं ऐसे ही जस्ट ये करता था। लेकिन जब कोई ऐसी व्यक्ति तुमको कुछ बोल देती है ना, तो तुमको एक दिशा मिल जाती। तो दैट वाज द माय स्टार्टिंग। देन आई रेड ऑल द जो 10-12 इम्पोर्टेंट उपनिषद से, फिर मैं उनको पढ़ा। सो कमिंग बैक, पतंजलि इज सेइंग कि यह ईश्वर तत्व तुम्हारे ही अंदर है, लेकिन गलती मत करना। पहला, तुमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं उस तत्व को, तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो तुमसे अछूत है।
ये तुम्हारे क्लेश, तुम्हारी बुद्धि की धारणाएं, उसमें गफलत मत करो। तुम्हारी बुद्धि की धारणाएं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे बुद्धि की धारणाओं के कारण तुम गलती करोगे और ईश्वर को कोसोगे, नहीं चलेगा। तुम्हारी कर्मों के कारण तुम्हें अभी दिख रहा है आगे कि कड़वे फल पक रहे हैं और तुमको खाने पड़ेंगे, और फिर तुम ईश्वर की तरफ दौड़ोगे और बोलेगी कि भैया थोड़े फल कम कर। वो नहीं करने वाला, वो सब नहीं होने वाला। बिकॉज ही हैज गिवन यू वॉट एवर ही हैड टू गिव यू ऑलरेडी। ये पंच भौतिक शरीर दिया है, पंच कर्मेंद्रिय दिया है, पंच ज्ञानेंद्रिय दिए हैं, मनस दिया है, अस्मिता दी है, बुद्धि दी है, पंच प्राण दे दी है। खत्म हो गया उसका, और पूरा बैलेंस दिया है। और उसके ऊपर फ्री विल दे दिया, कर्मण्येवाधिकार रास्ते कह दिया, कर्म करने का तुमको पूरा अधिकार है, ये कह दिया है। नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम हिम। ये पहला डेफिनेशन है पतंजलि का ईश्वर के बारे में। So understand this very, very clearly, and you will know what to expect and not to expect from something which is not connected to your world at all. तो ऐसी एक शक्ति जैसे है, समझ लो कि ऐसी एक एंटिटी है कि जिसका तुम्हारे इस लिमिटेड जो तुम्हारा जो जगत है ना, चुल्लू भर, उससे वो एंटिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो तुम ऐसे एंटिटी से क्या मांगोगे? If you understand this sutra, what will you, after understanding this sutra, what will you ask from that Ishwar Tattva? Suppose you are told कि चल मांग उससे, क्या मांगना है, क्या मांगोगे तुम? What will you ask? You will not be able to ask anything. तुम क्या मांगोगे तुम? तुम्हारी मांग ही क्या है? तुम्हारा इतू सा चुल्लू भर पानी का तो तुम्हारा पूरा संसार है, वो इन्फिनिट ताकत है। क्या मांगोगे तुम? तुम शर्म के मारे कुछ मांग भी नहीं सकोगे। तुमको ये हंसी आएगी कि मैं ये क्या मांगू, इससे क्या मांगू मैं, तो फिर क्या? फिर क्या करोगे? तुम एक ही चीज कर सकोगे कि मैं तुम्हारे जैसे बन जाऊं, या फिर तेरी जो इच्छा है वही मेरी मांग है। तू ही बता रहे भैया, क्योंकि मैं तो अल्पज्ञ हूं। मेरा नॉलेज की मेरा नॉलेज कितना होगा, हो के कितना होगा? मैं तो अल्पज्ञ हूं। तो इसलिए मैं इतने से नॉलेज से मांगूंगा तो क्या मांगूंगा तेरे? तो उससे अच्छा ये है कि भैया तू ही बता दे कि मैंने क्या करना चाहिए। तो ये समझने के लिए मैं तुझ जैसा बन जाऊं, तो तेरी जो भी मनीषा है वो मुझ में उतर जाएगी, अगर मैं तेरे जैसा बन गया तो। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये स्टेज पे जाकर वो क्या मांग सकता है? वो यही बोलेगा, लेट दाई विल बी डन। दैट इज द स्टेज। लेट दाई विल बी डन, नॉट माइन। क्योंकि मेरा माइंड, माई विल इज सो टाइनी, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूं। और इसलिए इमीडिएटली दूसरे सूत्र में, उसके नेक्स्ट सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं कि तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। मैं अल्पज्ञ हूं और तू सर्वज्ञ है।
सर्वज्ञता का बीज, बीज रूप सर्वज्ञता तुझ में है. Which means what again? These are very deep sutras and they have to be contemplated upon. They will clarify all your concepts, or rather misconceptions about God. बीज, he has used the word bee. What is a बीज? अभी इतना बड़ा वटवृक्ष बनता है, इतना banyan tree, such a huge tree. उसका पूरा डीएनए जो है वो एक बीज में रहता है, वन सीड, है ना. तुम्हारा पूरा डीएनए तुम्हारे एक कोशी में रहता है, एक सेल में रहता है. एंड द डीएनए हैज द एंटायर रोड मैप ऑफ यू. करेक्ट. तो उसको मैनिफेस्ट, उसको अगर वो मैनिफेस्ट होता है तो पूरे यूनिवर्स का रोड मैप उसमें रहता है. ये जो ईश्वर तत्व जो बीज रूप में तुम में है. सो हियर पतंजलि इज गिविंग यू an idea that you are Alpajna and he is Sarvajna, but he is in you. So his infinite knowledge is also inside of you with him in the form of a seed, which it is in your hands whether to nourish and allow it to grow. तत्र, पहले पहले सूत्र में उन्होंने क्या कहा कि पहले सूत्र में उन्होंने एस्टैब्लिश किया दैट दिस ईश्वर तत्व इज इनसाइड ऑफ यू. एंड नाउ इन दिस सेकंड सूत्र इज एस्टैब्लिशिंग दैट it has come with the infinite knowledge in the form of a seed. Along with it comes along with it. That tattva comes along with it. Now it is in your hands कि वो सीड को कितना ग्रो होने देना. उसके बाद में वो अगला सूत्र कह रहे हैं, पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान वच्छेदा. इस सूत्र से वह तुम्हारा जो भी बचा कुचा डाउट होगा इस तत्व के बारे में, उसको रिमूव कर रहे हैं. पहले सूत्र में उन्होंने कहा कि वह तत्व तुम्हारे ही अंदर है. दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि वह बीज रूप से उसका संपूर्ण ज्ञान, द इन्फिनिट नॉलेज, बीज रूप से भी तुम्हारे अंदर है. उस बीज को किस हद तक ग्रो होने देना, यह भी तुम्हारे हाथ में. और आज तक जितने भी गुरु हुए, जितने भी गुरु संत हो गए, महात्मे हो गए, ऋग्वेदों के ऋषि हो गए, सब ने इस तत्व को ही अल्टीमेट गुरु माना हुआ था और माना हुआ है. क्योंकि ये जो गुरु है ये काल से मर्यादित नहीं है. यह जो तत्व है
तो यहाँ पे वो उसका अनादित्व, उसका अनंतत्व एस्टैब्लिश कर रहे हैं। कालेन अनवच्छेदात पूर्वेशाम अपि गुरु, मतलब पूर्व में हुए सभी गुरुओं का ये गुरु रहा है। फिर वो इस कल्प में हो या पहले कल्प में हो, किसी भी कल्प में हो, क्योंकि यह कालेन अनवच्छेदात है। काल इसका मापक नहीं हो सकता। यह तत्व काल के परे है। यह तत्व सार्वभौम है। यह तत्व अनादि है, अनंत है। मतलब जिसका आदि, ये कहाँ से शुरू हुआ, किसी को पता नहीं है, और कहाँ इसका अंत होने वाला है, यह भी कोई जानता नहीं है। ऐसा तत्व है ये। यह तत्व अमृत है। मतलब इसको मौत नहीं है, क्योंकि यह पैदा ही नहीं हुआ है, यह हमेशा के लिए है। ऐसा यह गुरु है। और यहाँ पे पतंजलि ने गुरु ये वर्ड इस्तेमाल किया है। बहुत सिग्निफिकेंस है इसका, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसका। उसने गुरु क्यों कहा पतंजलि ने उस तत्व को? इसलिए कहा कि गुरु के पास तुम जाते हो तो क्या होता है। तुम अगर गुरु के पास गए, कोई सच्चा गुरु है उसके पास, और ये तो गुरुओं का गुरु है, तो जब तुम गुरु के पास जाते हो पूरे विश्वास के साथ, तो गुरु क्या करता है? तुम्हारा तुम्हारा भला ही करेगा ना, तुम्हें सीख ही देगा ना, तुमको डायरेक्शन ही देगा ना, तुमको गलत तो नहीं बोल बताएगा कुछ, है ना? तो दिशा ही तो देगा ना, तो बुद्धि को चालना ही देगा ना सही। जैसे गुरुजी ने, बीके साइंगर गुरुजी ने मेरे को एक वर्ड में बोल दिया, एक लाइन में, कि इफ यू आर स्टडिंग द योग सूत्रास, स्टडी मुंडक, because it is my belief कि Patanjali had Mundak in mind when he wrote the sutras. The same thing happened with me with Prashant Guruji, Prashant Iyengar. जब उनको पता चला काफी साल पहले कि मैं योग सूत्रों की पढ़ाई का अभ्यास शुरू किया है, मैंने कर रहा हूँ, थोड़ा सीरियसली कर रहा हूँ, तो एक बार उन्होंने ऐसे ही बोलते बोलते मेरे को कहा कि अशित, इफ यू आर स्टडिंग द योग सूत्रास, व्यास भाष्य इज इंडिस्पेंसिबल। बस खत्म, दैट वाज वन सेंटेंस। उसके बाद में मैंने व्यास भाष्य, फिर विज्ञान भिक्षु, वाचस्पति मिश्र, राजा भोज, और ये शंकर, जितने भी प्राचीन अर्वाचीन जितनी कमेंट्रीज है, सब पढ़ डाली मैंने उसके बाद योग सूत्र के ऊपर। बट दैट वन लाइन, तो इस इंटेंशन से पतंजलि ने यहाँ पे गुरु शब्द ये हमारे सिर में डाल दिया है, दिमाग में हमारे डाल दिया है कि सर्व सर्वेशम गुरु। अब ये बीके अयंगर और प्रशांत अयंगर मेरे गुरु है, और लेकिन वो मेरे सामने जीवित गुरु है, तो वो मुझे उनके मुंह से उन्होंने कुछ उपदेश किया मुझे। अब ये ईश्वर तत्व जो है, ये तत्व रूप में है तुम्हारे अंदर, तो वो तुम्हें मुंह से तो उपदेश नहीं कर सकता, लेकिन वो तुम्हें प्रेरणा देगा। समझिए क्या? सो ही इज आस्किंग यू टू कीप टोटल फेथ इन दैट तत्व। ये जो तुम्हारे अंदर है, कोई डाउट मत रखना इसके ऊपर। वह सर्वज्ञ है, इस पर कोई डाउट मत रखना। वो पूरी सर्वज्ञता, पूरी की पूरी सर्वज्ञता तुम्हारे ही अंदर बीज रूप में उसने होल्ड किए हुए है, इस पे कोई डाउट मत रखना। उस बीज को फलने फूलने के लिए तुम्हें तुम्हारे संस्कारों का पानी देना होगा, तुम्हारे कर्मों के तेज का प्रकाश उसे देना होगा, है ना? और तुम्हारे भक्ति से उसे नर्चर करना होगा। तो फिर वो जो तुम्हारी जो अल्पज्ञता है, वह सर्वज्ञता में
फलित फूलने लगेगी, क्योंकि उसको अंदर से प्रेरणा, बीज को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बीज को बाहर से निमित्त मिलते हैं, कि सूरज का प्रकाश मिला, पानी मिला, वेदर अच्छा मिला, ये तो बाहर के बाहरी निमित्त निमित्त हो गए। लेकिन जो ग्रो एक का दो होने की जो प्रेरणा है, वो तो अंदर से ही आती है ना बीज के। उस अर्थ में ये बीज शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्र निर्तिशयम, जिससे अतिशय कुछ है ही नहीं, सर्वज्ञता का बीज उस ईश्वर तत्व के साथ तुम्हारे अंदर है। उस बीज को फलने फूलने के लिए कर्म, भक्ति, ज्ञान, इनका निमित्त करो, तब वह गुरु बन के तुम्हारे ही बुद्धि को सही प्रेरणा देगा, जैसी उसने तुम्हारे पहले अनेक गुरुओं को दी है। क्योंकि वह काल से अबाधित है, वो सर्वदा है, सर्वथा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईश्वर अकॉर्डिंग टू पतंजलि। ना अब तुम मुझे बताओ, ये कौन से मजहब का ईश्वर है? कौन से मजहब? ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, या और कोई वहाबी है, पारसी है? कौन से मजहब का है ये? दिस इज पतंजलि। आज इसकी जरूरत है दुनिया, राइट? What are these idiots? What are they fighting about? What are they fighting about? Today is the time when the world needs Ashtanga Yoga the most. Okay, so I'm very happy to share all these things with you, and we'll stop here today. A lot of matter for contemplation for the whole week. Okay, if you got any afterthoughts, any doubts, anything, just note it down. We'll take it up in next session. अगली बार हम फिर से बात करेंगे. Okay, so thank you so much.